So hello everyone, hope you guys doing well. In this video we'll talk about MSc Management Consultancy offered by University College Dublin in very much detail. So ये पूरा 30 मिनट का वीडियो आई गेस है राउंड ऑफ, और उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन केस इन द एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन देन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको स्टडिंग अब्रॉड के प्रोसेस के बारे में जानना है इन वेरी मच डिटेल, वेरी मच क्लियरली कि आपको प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको बाकी प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें नीड पड़ती हैं, तो आई मेक अ वेरी क्लियर वीडियो फॉर दैट. आप लोग जाएंगे, दिस इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो को जरूर चेक करें. इट्स 25 मिनट लॉन्ग, अ वेरी डिटेल्ड वीडियो टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. सो मस्ट वॉच एंड सी यू आफ्टर द इंट्रो. बाय. सो MSc मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैंने इस वीडियो को फ्यू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्टली मेरे नोट्स यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ देख के बात करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम. सो you know, like it's a big program, so you need to do a research and stuff. So firstly I'll talk about UCD, University College Dublin. Then I'll talk about the MSc Management Consultancy program specifically. उसके अंदर हम बात करेंगे the admission process, the curriculum they have, and after that I'll talk about my experience and what's the job thing goes around. And then I'll compare it to other programs जो UCD offer करता है, generally like similar masters. And then I'll talk about who should do this, like if you're thinking about doing this program, then or like if your friends are looking for doing some masters, then so वो आपके लिए help करेगा कि who should do this or who this could be helpful. So let's start. Firstly, I'll talk about UCD. So UCD is like the biggest university here. It's like the most prestigious, very famous, very big. More than 35,000 students study here. Like उसमें I guess almost 15,000 to 20,000 students उसमें international students हैं. So it's quite a good environment here. So UCD is great. UCD, have no questions asked. UCD is one of the best universities here. Not just here, in whole Europe. It's great. Other than that, the business school which offers the MSc Management Consultancy program is UCD Michaels Moffitt Graduate Business School. So UCD के दो business school हैं. एक है जो अंडरग्रेड के लिए है, यानी जो बैचलर्स की डिग्री के लिए होता है, और एक है जो मास्टर्स के लिए है या फिर PhD के लिए. So उन्होंने दो अलग अलग बिजनेस स्कूल बना दिए हैं. So the one for the undergrads is Loyola Quinn Business School. UCD वो भी start इसी से होता है, UCD Loyola Quinn Business School. If you're looking for undergrad, then you can look at there. Apart from that, the master's one is Michaels Moffitt Graduate Business School. Michaels Moffitt was a famous businessman here who has given something to do with Ireland's and business industry. That's why they named it after him. I guess उन्होंने donation भी दिया था something, क्योंकि इनकी मूर्ति है on campus. I've seen that. So yeah, and another thing is that this UCD Moffitt की जो building है, it's not in the university campus. So it's like बाकी सारे जो अंडरग्रेड डिग्रियां हैं या फिर जितने भी मास्टर्स भी हैं, बट जो टेक्निकल हैं एंड एवरीथिंग इज ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस. इट्स इन बेलफील्ड, डबलिन में. बेलफील्ड में यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, बहुत बड़ा सा, 300-400 एकड़ का कुछ, उसमें वो सब है. बट द स्पेसिफिकली द मास्टर्स, द बिजनेस मास्टर्स का जो इनका कैंपस है वो ब्लैक रॉक में. ब्लैक रॉक इज क्वाइट फार फ्रॉम द डबलिन सिटी. आई मीन आता वो भी डबलिन में, बट थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, बीच के एकदम पास में. द मोमेंट द बीच स्टार्ट्स, ब्लैक रॉक स्टार्ट्स. तो जब आप जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू टेक अ ट्रेन, अगर ट्रेन रिफर्स टू द डार्ट जो इंटरसिटी चलती है, तो अगर आप सिटी सेंटर से डार्ट लेके उधर जाएंगे तो द स्टेशन इज जस्ट ऑन द बीच. सो आप स्टेशन पे उतरते हैं एंड यू टेक द ब्रिज टू क्रॉस. सो कभी कभी जब हाई टाइड्स होती हैं, यू कैन फील वाटर ऑन योर फेस. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बाय द वे. एंड ब्लैक रॉक इज ऑल्सो अ क्वाइट नाइस प्लेस. सो इन दैट केस कैंपस तो बहुत अच्छा है. दे हैव लाइक अ ओल्ड चर्च और आर्किटेक्चर काइंड ऑफ अ थिंग. सो इट लुक्स गुड, इट्स फाइन. सो लेट्स go to the next part. The next part is MSc Management Consultancy. So yeah, I have done my MSc in Management Consultancy. ये 1 साल का प्रोग्राम होता है. As the name suggests, it's all about management consultancy. Management consulting, शायद most of the students जो प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं वो जानते होंगे management consulting क्या होता है. Management consulting आप basically जो भी बिजनेसेस हैं उनके ऑपरेशंस को थोड़ा और इजी बनाना, थोड़ा प्रोफिशिएंट एफिशिएंट बनाना. बिजनेसेस के डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली. सो दे आर लाइक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. सो इफ एनी बिजनेस हैव अ प्रॉब्लम, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैव देम. सो लाइक द बिग नेम्स इन दिस इंडस्ट्री आर McKinsey, BCG, Bain, एंड उसके बाद फिर बिग 4 आ जाते हैं. जैसे बिग 4 जो टैक्स के या फिर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स होंगे वो बिग 4 जानते होंगे, लाइक EY, Deloitte,
PricewaterhouseCoopers, and then I guess the fourth one was KPMG. And apart from that फिर और काफ़ी सारे firms हैं consulting के अंदर, Grant Thornton है, Kearney है, and lot more. So ये programs specifically design उनके लिए किया है कि who the people who are interested in management consulting. Okay. इस प्रोग्राम में इट्स लाइक अ 12 months प्रोग्राम, 12 महीने। जनरली यहाँ पे सारे जो मास्टर्स होते हैं 1 साल के ही होते हैं, ठीक है। एंड अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, बेसिकली इफ़ यू हैव अ जॉब एंड यू वांट टू डू इट लाइक इन पार्ट टाइम, कि आपको पूरा रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है, आप हफ्ते में या फिर 2 ही दिन आ पाएंगे, ऐसा कुछ करना है, देन दिस प्रोग्राम कैन एक्सटेंड अप टू 2 years। आप 2 साल का कर सकते हैं इसको। एंड दिस प्रोग्राम यूजुअली स्टार्ट्स इन सितंबर। मेरा भी लास्ट ईयर सितंबर को 12th को स्टार्ट हुआ था। दिस ईयर भी काइंड ऑफ सेम ऐसा ही होता है जनरली। बाय द वे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यू जस्ट सिंपली नीड टू सर्च MSc मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आगे UCD लिख देना तो दे विल हैव द प्रोफाइल। आई एम जस्ट टॉकिंग यू थ्रू, क्योंकि प्रोसेस का है तो मैं बता देता हूँ। क्लास का साइज जनरली 66 होता है। मैं जिस साल में था उस साल भी 66 ही था। आई मीन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी शायद नहीं होगा, क्लोज टू 70 में एंड हो जाता है। एवरेज एज वेबसाइट पे यहाँ 24 मेंशन है। एंड क्लास का भी काइंड ऑफ सिमिलर था, लाइक डाइवर्सिटी इज देयर, डाइवर्सिटी इज लाइक एक्सेप्शनल। लास्ट ईयर 7 नेशनैलिटीज के लोग थे, मतलब इन UCD यू हैव लाइक मोर देन 50 नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं। बट टू बी स्पेसिफिक, इन माई प्रोग्राम 7 नेशनैलिटीज के लोग थे, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, ऑब्वियसली आयरलैंड, देन UK, यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोर्टुगल। सो दीज आर द कंट्रीज जहाँ से मेरी क्लास में स्टूडेंट थे लास्ट ईयर। सो एंड 53% ऑफ द क्लास वॉज इंटरनेशनल। सो जिसके अंदर जो मैंने आयरलैंड को छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे वो सब 53% के अंदर आ गए, रेस्ट 50% वॉज आयरिश। सो जनरली कुछ अदर प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी, जैसे आपने जनरली, अपना आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर लाइक अवेयर, बट आपने कुछ रील देखी होंगी जो UK के स्टूडेंट्स या कनाडा के स्टूडेंट्स बनाते हैं, कि वो लोग कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया उन लोगों ने फॉर द सेक ऑफ कि बाहर पढ़ने जाएंगे और डाइवर्सिटी मिलेगी, बट उनका 90% ऑफ द क्लास इंडियन ही होता है, जो कि जनरली ट्रू है बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए। बट two different things that Ireland is not comparatively not that popular for international students comparative to Canada or Australia. So यहाँ पे उतने Indians नहीं हैं। And second thing is that UCD हो गया, या फिर जो UCD and TCD are like the biggest universities here. So they try to maintain the diversity. So in case बहुत सारे Indians के अगर applications आएंगे तो they won't take like every Indian because they are good. They just want like they have a quota kind of a thing that 20 इंडियंस लेने हैं, 10 चाइनीज लेने हैं, दैट्स हाउ दे प्रोसेस, ताकि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। सो दैट्स अबाउट द क्लास। टू बी लाइक जो वेबसाइट पे मेंशन नहीं, वैसा कुछ एक्सपीरियंस बताऊँ तो डाइवर्सिटी वाज लाइक वेरी बिग इन माय क्लास। लाइक पीपल आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, IT से थे, HR से थे, लॉ से थे, एंड पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट एजेस। कोई 34 साल का था, 34 versus 34 if you guys don't know, so 34, 31, 32, and youngest was me. So just a fun fact that in last year batch I was the youngest. When I joined the program I was just 20. I mean मैं भी बैचलर्स पास करके गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो बैचलर्स के बाद ही डायरेक्ट आए थे, बट यहाँ पे पढ़ाई थोड़ा लेट से स्टार्ट करते हैं। जनरली मास्टर्स स्टूडेंट्स बाई 22 की एज पे करते हैं। सो आई वॉज द यंगेस्ट इन माई क्लास। सो दैट्स अबाउट द प्रोग्राम स्पेसिफिकली। नाउ वी टॉक अबाउट द करिकुलम एंड द लर्निंग। ओके, सो करिकुलम is great. No hands down, curriculum is like very good. This is what really expected and this is what I got. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स होंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड पढ़ाई कम होगी। लाइक पढ़ाई रिफर्स टू कि मुझे नोट्स कम बनाने पड़ेंगे, या फिर एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स कम होंगे, बट मोर विल बी लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग। क्योंकि इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑल्सो, बिकॉज आई हैव वर्कड बिफोर, not really like full time, but मेरा internship experience was with a German management consulting firm. तो I have worked before and that time I had an experience कि काम कैसा होता है. So I was expecting कि यहाँ पे पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं होगी at least, and that's what it is. जनरली 12 मंथ्स का जो प्रोग्राम होता है इसमें तीन ट्रिमेस्टर्स होते हैं. ट्रिमेस्टर्स लाइक 4 मंथ का एक पीरियड होता है. सो फर्स्ट जो 4 मंथ्स होते हैं जो आपके सितंबर से स्टार्ट होते हैं, उसमें 3 कोर मॉड्यूल्स होते हैं. टू बी स्पेसिफिक, कॉम्पिटिटिव एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. दिस वॉज एक्जैक्टली सेम फॉर मी, इट्स नथिंग न्यू. सो इसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रिंसिपल्स जो है, इसमें आपका एक प्रोजेक्ट होता है जो रियल क्लाइंट के साथ होता है. देन कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको नोट्स कम बनाने हैं, एग्जाम कम देने हैं, जस्ट नीड टू लर्न. और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको लर्न करना है. और
फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे, तो यू नीड टू राइट अ रिफ्लेक्शन लेटर। रिफ्लेक्शन लेटर बेसिकली आपका एक्सपीरियंस, आपने कुछ काम किया, आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस हुआ, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते हैं लंबे से 2-3 हज़ार 4 हज़ार वर्ड्स में, ऐसे काइंड ऑफ वो लिख के आप एक्सप्लेन करते हैं एंड टीचर असेस ऑन ओवर दैट। मार्क्स मिलना इतना ईजी नहीं है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ भी लिख दिया एंड यू गेट लाइक A+ तो लाइक इट्स मोर देन एक्सेप्शनल। A+ तो किसी को ही नहीं मिलता है, वेरी रेयर, बट स्टिल आपको B+ या फिर B- तक मिल जाए तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे B+ तक मिल जाता था, तो इट्स व्हाट गुड इनफ फॉर मी। देन स्प्रिंग ट्रिमेस्टर आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। स्प्रिंग ट्रिमेस्टर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट आता है आपका, जो ऑलमोस्ट एक इंटर्नशिप की तरह होता है। जैसे मेरा मेजर प्रोजेक्ट था विद ग्रांट थॉर्ंटन, इट्स अ क्वाइट फेमस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। तो उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट था 12 वीक का, वेयर माई टीम वॉज वर्किंग विथ ग्रांट थॉर्ंटन्स कंसल्टेंट। तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था क्योंकि एक मेजर प्रोजेक्ट होता है एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट आप उस कंपनी के यानी ग्रांट थॉर्ंटन के डायरेक्टर्स के सामने वो प्रेजेंट करते हो। इट्स एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा हुआ था। देन यू हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लास्ट ईयर मेरे टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वॉज इन समर ट्रिमेस्टर, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समर ट्रिमेस्टर में उतनी ज़्यादा रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं और बहुत लंबा है ये कोर्स, दिस मॉड्यूल। सो दे शिफ्टेड इट टू स्प्रिंग ट्रिमेस्टर ताकि रेगुलर क्लासेस हो पाएँ इसकी। सो फॉर दैट रीजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन यू हैव अ मेजर प्रोजेक्ट इन दिस। इसमें आप अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बनाते हैं एंड लॉट ऑफ वर्क गोज ऑन। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट यू हैव एन आइडिया, सो इट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑप्शनल, यू कैन से ऑप्शनल मॉड्यूल होता है। बेसिकली 3 मॉड्यूल करने हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में भी, एंड 2 तो ये कंपलसरी हैं। देन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, क्रिएटिव इनोवेशन, माइंडफुलनेस, लीडरशिप, सस्टेनेबल। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि फॉर मी व्हाट आई थिंक creativity, innovation and entrepreneurship is like the best module in it, क्योंकि इसमें again you have to do a major project, because मैं project based learning बहुत believe करता हूँ, that you do stuff to learn rather than learning stuff to do. Okay, so for that thing that program is exceptional, but अगर क्योंकि a lot of students had an issue that उनको work अपना part time करना था एंड कुछ लोगों को थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था, सो दे ऑल शिफ्टेड देयर की रेदर देन डूइंग आप लीडरशिप कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप जैसे प्रोग्राम में आपको पढ़ना कम होता है या फिर अपना माइंड कम इन्वॉल्व करना है। यू जस्ट अटेंड द लेक्चर्स, राइट द एसेज एंड डन। क्रिएटिविटी इनोवेशन में आपको थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स एंड ऑल इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट देन जस्ट राइटिंग एसेज, सो दैट्स वाई। तो आप चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज दैट थिंग। वो आपको लिंक मेल आ जाता है कि कब आपका ओपनिंग हो गया है चूज करने के लिए। एंड इफ यू गाइज आर लाइक इन दिस प्रोग्राम टिल इन दिस ईयर और अगले साल आ रहे हैं, तो लुक फॉर दैट मेल, क्योंकि वो प्रोग्राम्स की एक लिमिट होती है कि इतने स्टूडेंट्स ही एनरोल कर सकते हैं, वो फिल हो जाता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ऑप्शनल कि ये वाला चाहिए, तो जैसे ही आए फिल फॉर इट। देन द लास्ट ट्रिमेस्टर, इसमें आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कोर मॉड्यूल होता है जो कंपलसरी ये करना है। जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, बट इस साल मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत होता है। स्पेसिफिकली जो प्रोफेसर्स हैं, मैं जितने प्रोग्राम्स में प्रोफेसर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट दीज ऑल द प्रोफेसर्स आर एक्सेप्शनली वेल, hands down they are very good in what they are teaching. They all have practical experience. Best part is this only कि यहाँ पे कोई भी टीचर PhD करके नहीं आया है बस कि भाई हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ा देते हैं। इन सब ने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, सब बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए रियल प्रोजेक्ट्स करके चुके हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टीचर हैं, उन्होंने बुक्स भी पब्लिश की हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड। सो दे ऑल आर लाइक एक्सपीरियंस लाइक एकेडमिकली टू, एंड सब ने वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो वो लोग वो जब पढ़ाते हैं ना, तो इट गिव्स लाइक अ बेटर सेंस, इट मेक्स बेटर सेंस, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, डू टेक इट वेरी केयरफुली, तो वो होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप एक और चीज़ ऑप्शन होता है, ईदर यू कैन डू अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, ठीक है। सो द थिंग इज कि प्रोजेक्ट जैसे सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो 12 वीक का प्रोजेक्ट होता है, वैसे ही प्रोजेक्ट इसमें भी मिल सकता है आपको। एंड बाय द वे दिस ऑल अरेंज बाय यूसीडी, द प्रोजेक्ट्स आर अरेंज बाय यूसीडी, द मेजर प्रोजेक्ट्स यू डू। तो कंपनीज उनके पास आएंगी, वो लोग फिर हम लोग को हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपको एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट प्रोजेक्ट। ये नहीं कि डेलॉइट आई, डेलॉइट वहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है, तो यू जस्ट साइंड अप और डेलॉइट मिल गया आपको, नहीं। आपको लिख के देना पड़ेगा प्रोफेसर को कि वाई यू थिंक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट दिस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, नॉट जस्ट फॉर डेलॉइट। प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, फिर उसमें आपका क्या रोल हो सकता है,
अब वो आप एक्सप्लेन करते हैं, देन अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट मिलता है। तो वो प्रोजेक्ट आप समर में कर सकते हैं। और इफ़ यू कुड फाइंड एन इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लास्ट ईयर I mean for me I got an internship with an Estonian management consulting startup, तो मैंने internship कर ली थी। But a lot of people, getting an internship is not that straight, not that easy, तो it depends person to person, but अगर आपको मिल जाती है तो it's a great thing। तो अगर आपको internship मिल जा रही है then you can go for it, otherwise आपको project करना पड़ेगा। And projects, I mean it depends कि आप क्या करना चाहते हैं। For few people because they can get an internship, it's just like project करने का plus point, the only plus point is कि you can improve your scores। क्योंकि अगर आप management consulting internship करते हो तो it have a base, it's like इसमें pass and fail का है कि आपने consulting की internship की, आपने report submit की, you are pass, you can't improve your GPA। अगर आपके पिछले 2 सेमेस्टर्स में आपका GPA थोड़ा सा लो है तो आप प्रोजेक्ट करके और प्रोजेक्ट को अच्छे से करके आप हाई स्कोर मिल सकता है, तो आपका जीपीए थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। मेरा जीपीए कंपैरेटिवली नॉट बैड बट फाइन इनफ था, एंड मैंने इंटर्नशिप की। सो इंटर्नशिप में कोई एडिशन नहीं होता है जीपीए का, तो इट वाज एक्जैक्टली द सेम। अगर मैं प्रोजेक्ट करता तो शायद थोड़ा इंप्रूव हो जाता, बट इट वाज फाइन, मेरा कोई इशू नहीं हुआ था, इट वाज ग्रेट। सो दैट्स इट फॉर करिकुलम पार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माई एक्सपीरियंस। ओके, सो माई एक्सपीरियंस आई विल स्ट्रेट अवे गो विथ एक्सेप्शनल। द फर्स्ट थिंग इज, मेरा एक्सेप्शनल होने के बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्टली मेरा अंडरग्रेड का जो एक्सपीरियंस था, या मैंने जहाँ से बैचलर्स किया था, इट वाजंट रियली ग्रेट, ना अच्छा कॉलेज था कंपेयर। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बट मेरे लिए एटलीस्ट वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर्स, द करिकुलम वाज उतना अच्छा नहीं था, इट वाज नॉट बेस्ट ऑफ माई चॉइसेस इन माई लाइफ। सो वो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। देन दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर आ रहा था। Then studying in one of the best universities in the world and highly ranked and all those things. So it was again a great thing. Second, third, that I was studying something which I wanted to do. So it wasn't like कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मैनेजमेंट एंड देन आई विल सी कि मैं क्या करूँगा। मुझे पता था मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग या फिर स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में जाना है, एंड दिस वाज एग्जैक्टली दैट। इट वाज स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस, सो आई वेंट फॉर इट। आई मीन स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ इट। सो मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर रहा था एंड इट वाज ग्रेट। इन दीज रीजन्स बहुत अच्छा था। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट सेकेंड, फोर्थ पॉइंट इज दैट इट वॉज ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड। मतलब द बेस्ट थिंग वॉज कि मुझे पूरे एक साल में आई गेस बस एक एग्जाम देना पड़ा था। आई गेस इन सेकेंड ट्रिमेस्टर और द फर्स्ट वन, या इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर मुझे एक एग्जाम देना पड़ा था। आफ्टर उसके बाद या उससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं था। मुझे बस ऐसे जो भी एक्सपीरियंस किया, जस्ट राइट इट डाउन एंड अपलोड एंड यू गेट स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। सो इट डिपेंड्स कि आपको एग्जाम देना पसंद है या फिर एक्सपीरियंस ऐसे लिखना पसंद है, बट आई प्रेफर नॉट एग्जाम्स। मैं एक्सपीरियंस करके उसको लिख के एंड आई एम गुड विद दैट। सो दैट्स वाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड वो सोने पे सुहागा एक्सपीरियंस इसलिए हो गया क्योंकि आई वर्कड आउट फॉर मी, आई गॉट अ जॉब। ओके, इट्स नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसके बाद किसको जॉब लगे। आई मीन जॉब लगना इज नॉट एन इशू। 6 मंथ्स के अंदर, प्रोग्राम खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल को जॉब लगी जाती है। स्पेशली इफ यू आर आयरिश और यूरोपियन, इट्स वेरी कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू। इफ यू नॉट आयरिश और नॉन यूरोपियन, देन थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है। डेफिनेटली आई वोंट से कि ईजी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में जॉब वाले वीडियो में बताया। सो डू चेक इट आउट। द वीडियो टाइटल इज फाइनली आई गॉट अ जॉब। सो उसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा थोड़ी चीज़ें। बट फॉर मी एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड था, एंड आई लाइक टू डू प्रोजेक्ट्स, आई लाइक टू डू वर्क विद अ कंपनी। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बस ये नहीं था कि प्रोजेक्ट मिला, एक टाइटल था और उस पर रिसर्च करो एंड डू इट। इट वॉज विथ रियल कंपनीज। इट्स पूरे पीरियड में आई गेस मैंने 4 रियल कंपनीज के साथ काम किया था। सो इन होल ईयर आई got to work with 4 real companies. So it was exceptionally great experience for me, and I guess मेरा स्कोर भी ठीक ठाक ही था। I mean I won't say it was bad. हाँ, one thing, they are very strict with plagiarism. Plagiarism refers to कि आपका जो आंसर है या फिर कहीं से कुछ कॉपीड, क्योंकि they don't do it on your own, they have a software। तो आप जो भी आंसर सबमिट करते हैं या जो कुछ भी अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली उससे चेक हो जाता है कि कहीं प्लेजराइज तो नहीं है, कहीं से कॉपीड तो नहीं है। तो उसके लिए बहुत सीरियस केस हो सकते हैं। तो मेरे साथ इशू हो गया था। आई नेवर डू दैट। आई एम वेरी गुड विद राइटिंग एंड स्टफ, एंड चीटिंग मेरा कोई एक ज़्यादा रीज़न नहीं पड़ा चीटिंग का, तो मैंने कभी चीटिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। बट in first semester, one of my friend, I won't take his name, but one of my friend copied something from my answer and pasted it. And as I mean, it was first semester, so we didn't have any idea. And software obviously track कर लिया, and then professor, marked it as plagiarized content. So मेरा और मेरे friend दोनों पे हम लोग पे केस हो गया था। Basically, case refers to, it's an internal term used. Basically, हम लोग को एक कमिटी के सामने जो plagiarism
और कह सकते हैं रिलेटेड कमिटी होती है, उनके सामने जाना पड़ता है. इट्स काइंड ऑफ फीलिंग लाइक अ कोर्ट कि आपको जाना है, अपना बयान देना है एंड ऑल, बट इट वाज फन. इट जस्ट लाइक कि जितने टाइम चल रहा था उतने टाइम फन नहीं था. उसके बाद इट वाज लाइक कि हाँ चलो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ. बट सो उसके लिए वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं बेसिकली. माई फ्रेंड वॉज अ वेरी गुड गाय, सो he straight away accepted in front of the committee that he did the thing, I didn't did anything. So मुझे फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया. So मेरा कुछ हार्म नहीं हुआ. इट जस्ट लाइक मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ. बट फॉर हिम उसका जो ग्रेड था वो बार्ड कर दिया. ग्रेड बार्ड मीन्स रिवर्स टू लाइक कि आपको C+ से ज़्यादा नहीं मिल सकता. सो ही हैड टू गिव द एग्जाम अगेन एंड द मोस्ट वॉज C or D समथिंग. तो उसको उतना ही ग्रेड मिला, उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता था क्योंकि एज पर द कमिटी डिसीजन he got that thing. But it was still a great experience, you know. I mean, it's a fun place क्योंकि regular classes बहुत कम थी. हफ्ते में 3 दिन classes थी for 2 trimesters and the last trimester तो class मतलब जो एक्स्ट्रा थर्ड ट्रिमेस्टर में, जो समर ट्रिमेस्टर में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर्क इन इंटर्नशिप, तो बाकी सारी जो क्लासेस होती हैं कंप्लीटली ऑनलाइन होती हैं. तो इट वाज आल्सो फन. सो अब ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. नाउ द क्वेश्चन कम्स is the final one that I mean, for obviously the comparison thing, I would say on the basis of comparison I will definitely go for कि MSc Management Consultancy बाकी सारे मास्टर प्रोग्राम से comparatively better है. Just for the major reason is that it's very much practical. आपको रियल कंपनी के साथ काम करने को मिलेगा. That's the only or like the very basic thing which makes it above the other programs. UCD का मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम इज एक्सेप्शनली ग्रेट. इट्स हाईली रैंक. जो आपने देखा होगा ना फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में या फिर QS की वर्ल्ड रैंकिंग में, UCD जो आता है, जो लास्ट कुछ सालों से टॉप 10 में था, फिर अभी टॉप 20 में है, समवेयर कमिंग अराउंड, वो उस प्रोग्राम की वजह से. इट्स नॉट लाइक ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ UCD इन दैट कैटेगरी. दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम इज इन दैट कैटेगरी, दैट हाईली रैंक्ड, बट स्टिल इट्स ग्रेट. द प्रोग्राम इज ग्रेट. अगर वो आपको मिल जाता है देन नो वरीज, इट्स ग्रेट. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, Masters in Finance, Human Resource, they all are great. I won't say कि program कोई भी खराब है. It's just like in management consultancy, when you get more practical exposure, आपके resume पे European companies के साथ का experience आता है, that really helps you in getting a job. That's it. Otherwise, all those programs are drafted very carefully. But I would definitely say don't go with my words. अगर आपको अलग other programs के बारे में और डिटेल में जानना है, then talk to some people. क्योंकि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, फर्स्ट रीजन क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम किया है. सेकंड, मैंने देखा है कि बाकी लोग जो मेरे क्लास के हैं वो क्या कर रहे हैं, हाउ इट्स वर्किंग आउट फॉर देम. एंड थर्ड, मुझे लिंक्डइन पे रोज मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग की इस प्रोग्राम, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग दिस ईयर, बहुत सारे कंसिडर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, इवन इन कमेंट्स, सो दे टॉक टू मी. तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आंसर कर देते हैं उन सबका. So that's all about like comparison. It's good. It's comparatively good to other programs for me, at least for me, because what I can see the other people, the thing is कि it's a very subjective answer. तो इस पे आप मुझे कोट मत करना, but I would say कि comparatively जो other programs में नॉन यूरोपियंस को जॉब लग रही है, उससे comparatively सीन हमारे प्रोग्राम का या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का बेटर है. Okay, so that's why I'm rating it high. Then now the last part is who should do this. सो मेरी अभी 1 मिनट में एक मीटिंग है, तो आई नीड टू स्विच फॉर दैट मीटिंग. बट उसके बारे में मैं मीटिंग एंड करते ही सबसे पहले बात करता हूँ, ठीक है. हु शुड डू दिस, जस्ट वेट अ मिनट. सो आई एम बैक. मेरी मीटिंग खत्म हो गई है. इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग मीटिंग, बट ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क. सो मैं अभी मेरा ब्रेक चल रहा है. यूजली आई टेक ब्रेक लाइक फॉर हाफ एन आवर. मैं 1 घंटे का ब्रेक ले सकता हूँ, बट आई प्रेफर टू टेक हाफ एन आवर, क्योंकि खाना तो आप काम करते करते भी खा ही सकते हैं. इट जस्ट लाइक यू मिनिमम आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, तो मैं मिनिमम आधे घंटे का ले लेता हूँ. तो कि जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है. आई लॉग इन एट 8 एंड रैप अप एट 3:45 आई एम डन विद माई वर्क. सो उसके बाद काफ़ी टाइम बचता है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. आई एम राइटिंग अ बुक टू. You might get to see what I'm writing in few next videos. So yeah, the another part was who should do this program. Okay, but before that मैंने अभी just check किया कि एक बहुत important part जो हमने मिस कर दिया, जो मैंने starting में बताया नहीं, is eligibility for this program. Like अगर आप interested हैं तो फिर like can you, I mean before who should do it, it should be like who can do it. So for that who can do it, it's very simple, it's very straightforward eligibility for UCD basically. You don't have to take any GRE or GMAT like other top business schools. बहुत सारे business schools में आपको लेना पड़ता है, but for this is something specific to Ireland and UK. Ireland and UK में आपको GMAT और GRE लेने की नीड नहीं है. Okay, it's all based upon your profile. So the thing is GRE and GMAT आपके ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बेसिकली, जैसे इंडिया में आप कैट देते हैं
वैसे यहाँ पे GRE और GMAT दे सकते हैं इंटरनेशनली। एंड सिर्फ यहाँ पे रिफर्स टू नॉट लाइक कि आयरलैंड के लिए, पूरे वर्ल्ड में GRE एंड GMAT वैलिड होता है। मैंने GRE दिया था बट मुझे नीड नहीं पड़ी थी UCD में अप्लाई करने के लिए। इट्स लाइक इट्स गुड टू हैव, इट्स नॉट लाइक कि आपने ले लिया है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या आप ऐड नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपका स्कोर अच्छा है और अगर आप ऐड करते हो तो आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट अ कंपल्जन टू हैव। एंड आई एम नॉट श्योर, अगर आपका प्लान है कि UK या आयरलैंड में ही पढ़ना है देन डोंट टेक इट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग एंड पढ़ाई में काफ़ी टाइम जाता है, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक इट। ओके, सो अदर दैन दैट आपकी बहुत बेसिक से रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। एक अंडर ग्रेड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 70% से ज़्यादा मार्क्स हों। तो बेसिकली आई गेस 70 या 65 कुछ था लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स क्लोज टू 65 एंड 70, इतना मिनिमम होना चाहिए। बट आई वुड से जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, ठीक है। मेरा गुड एनफ स्कोर था, सो मेरे लिए स्कोर रिलेटेड कोई इशू नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑब्वियसली आइल्स का एग्जाम देना है, आइल्स या टोफल एंड आइल्स बेसिकली आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम होते हैं कि आपका कितना स्कोर आया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना है कि हाउ टू स्टडी अब्रॉड, मतलब क्या क्या क्योंकि बेसिकली आपको एसेज लिखने होंगे। ऐसे रिफर्स टू लेटर ऑफ मोटिवेशन कि आप क्यों यहाँ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पढ़ के आप क्या करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट होगा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ आप और कैसे प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो में। वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। इट्स बेसिकली टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। आई गेस 20 to 25 मिनट्स का वीडियो है, पूरा डिटेल। सो यू मस्ट चेक इट आउट अगर आप इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। उसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैंने लैपटॉप से रिकॉर्ड किया था, बट ऑडियो इज़ फाइन एंड यू विल गेट लाइक इट्स वेरी इंसाइटफुल। यू मस्ट चेक इट आउट। सो ओके, सो एंट्री रिक्वायरमेंट्स बस इतनी सी है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए और आप एप्लीकेशन भेज दो। बस उनके ऊपर है कि कौन कितना अच्छा है, उनको जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपके हाथ में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट फीस मेरे टाइम पे इट वॉज 20,500 euros व्हेन आई अप्लाइड फॉर दिस, बट दिस ईयर ये बढ़ के आई गेस 22,000 समथिंग हो, आई गेस 22,600 हो गई है। सो ऑब्वियसली, और ये हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है। सो इट्स नथिंग लाइक कि बढ़ा दिया इन लोगों ने, वो प्रोसेस होता है, वो हर साल फीस बढ़ाते रहते हैं। जितना प्रीमियर होता जाता है प्रोग्राम उतनी और फीस बढ़ती है। अगर आप MSc इंटरनेशनल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है UCD के, लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द होल यूरोप, तो उसके लिए फीस और भी ज़्यादा है। लाइक बिजनेस एनालिटिक्स के लिए लास्ट ईयर जो मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू स्टडी, उसके 25,000 था उस टाइम पे, व्हेन आई वाज पेइंग 20,500। सो प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज होती है, बट फॉर दिस प्रोग्राम इज 22,600 क्योंकि अब काफ़ी प्रीमियर हो गया है प्रोग्राम। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन। इस साल का सेशन स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट ईयर के सेशन के लिए दिस इज द फीस। और एप्लीकेशन आई गेस स्टार्ट हो चुके होंगे। इफ यू वांट टू अप्लाई जस्ट गो फॉर इट। ओके, so what we are talking about after this, who should take it? Okay, firstly ये program is not a ticket to anything. Like in India आप IIT से BTech करते हो या IIM से BTech MBA करते हो, PGDM basically, so there is a ticket की 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख की फीस दी है, तो एक जॉब तो लगी जानी है उसमें, लाइक नो हैंड्स डाउन जॉब लगी जाएगी। अगर आप बढ़िया कॉलेज से हैं तो फिर 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज। अगर आप मीडियोकर कॉलेज से हैं 15, 16, 12, कम से हैं 5, 6 और एकदम ही खराब हैं तो फिर अदर वे अराउंड। बट टॉप कॉलेजेस के लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पे UCD इज द बेस्ट, स्मॉलफोर्ड बिजनेस स्कूल इज द बेस्ट, बट इट डोंट गारंटीज कि आपकी जॉब लगी जानी है, ठीक है। जॉब लगना में हेल्प जरूर करती है, ऑब्वियसली आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। हेल्प्स इन वे कि आपको सिखाती बहुत है, ठीक है, तो आपको नॉलेज हो जाती है। सेकेंड, आप रियल स्पेसिफिकली दिस प्रोग्राम आप रियल कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो आपके प्रोफाइल पे वो यूरोपियन कंपनीज का नाम आ जाएगा, विच विल हेल्प यू गेटिंग अ जॉब, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप इंडिया में आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, बट अब वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से यूरोप से कनेक्टेड नहीं है, देन योर प्रोफाइल इज कंपेरेटिवली वीक, क्योंकि यूरोप का सिस्टम अलग है, काफ़ी चीज़ें अलग है। तो सिर्फ इंडिया में काम करके यू आर नॉट गुड इनफ फॉर कि मैं यूरोप भी हैंडल कर लूंगा। अकॉर्डिंग टू देम आई बिलीव यस, बट अकॉर्डिंग टू देम इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप MSc मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हो तो आपको काफ़ी यूरोपियन कंपनी के साथ, जैसे मेरे रेज्यूमे पे 4 यूरोपियन कंपनीज के नाम है फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि सबके साथ मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, आई कैन ऐड दैट। तो वो आपका यूरोपियन कंपनी के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस शोकेस करता है, इससे जॉब मिलने में कंपेरेटिवली आसानी होती है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, आपके पास 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, यू जस्ट नीड अ स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 साल का वीज़ा मिलता है स्टैम्प 1G, जो जॉब मिलने में थोड़ा हेल्प करता है, कि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तब भी आप यहाँ पे ईजिली रह सकते हैं। उसके लिए यहाँ आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको वीज़ा चाहिए, जस्ट आपको वीज़ा चाहिए, तो यू कैन गो फॉर अदर कॉलेजेस लाइक डबलिन बिजनेस स्कूल DBS, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड NCI, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क. They are different universities which are not very highly rated comparatively to. They are good. All the universities are good, but they are not comparatively highly rated like University College Dublin or Trinity College Dublin. वहाँ पे आप जाएंगे तो फीस कंपेरेटिवली बहुत कम है. लाइक फॉर MBA आई गेस यू विल बी पेइंग लाइक 13,000 euros और समथिंग, और वहाँ पे बहुत इजीली स्कॉलरशिप भी मिल जाती है. ठीक है, 13,000 euros फॉर एन MBA. और अगर वही MBA आपको UCD में करना है, इट विल बी क्लोज टू 35,000 40,000 euros. सो इट्स मोर देन डबल एक्सपेंसिव इन UCD, बट ऑब्वियसली क्योंकि UCD ब्रांड है, सो दे कैन चार्ज फॉर दैट, एंड दिस ब्रांड डोंट गारंटीज अ जॉब. आपको लगता है आपकी प्रोफाइल गुड इनफ स्ट्रॉन्ग है, आपको बस एक वीज़ा चाहिए, देन गो फॉर समथिंग लाइक DBS और NCI. यहाँ पे कम फीस पे करके थिंग्स वर्क आउट फॉर यू. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लर्निंग, फॉर मोर एक्सपोजर, एंड इफ यू फील लाइक कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी नहीं है या फ्रेशर है, एंड यू थिंक दैट यू नीड सम रियली गुड हेल्प और रियली गुड ब्रांड नेम और रेज्यूमे, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में ना अच्छा कॉलेज था, ना कोई एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं था, देन यू शुड गो फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये आपको वो सारी चीज़ें हेल्प करेगा जो आपके अंडरग्रेड में नहीं थी. क्योंकि मेरा रेज्यूमे वॉज not that good comparatively, because obviously I had a good experience in the end semester of my undergrad, but before that it was all clean slate, nothing was there. So आपको extra work करना पड़ेगा. मैंने extra work किया था, अगर आपने नहीं किया है then you should go for more branded college like UCD और Trinity, ताकि आपके resume पे एक UCD या Trinity का tag लगेगा. Still it won't guarantee a job, but it's obviously better than getting a tag of DBS or NCI. Okay, hope you're getting, I mean आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So that's it for this video. In case you guys have any questions, then ping down in the comment. Okay, apart from that, I also have one-to-one sessions with all the students who are looking forward to studying abroad, not just in Ireland but in UK or Europe, anywhere. If you guys have issues with your profile, अगर आपका एडमिशन हो गया है UCD में, but you don't have, अब obviously वीज़ा लेना पड़ेगा आपको आयरलैंड आने के लिए, क्योंकि मैंने जो वीज़ा का प्रोसेस था वो खुद से किया था. आई डिडंट हैड अ वीज़ा कंसल्टेंट, सो आई हैव अ होल प्रोसेस, लाइक मैंने प्रोसेस खुद से किया था, मैंने लोन लेके किया था, ना लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू. सो मुझे वो सारा प्रोसेस एग्जैक्टली ये पता है. ओके, एंड इट वेंट वेरी स्मूथ फॉर मी. सो कंपेरेटिवली जो आप वीज़ा कंसल्टेंट्स होते हैं जो 50,000 60,000 फीस लेते हैं फॉर आपका वीज़ा, उससे कंपेरेटिवली वेरी कम रेट्स पे, जस्ट लाइक for a coffee fees for me, that kind of thing. So अगर आपको वैसे कोई भी सेशन जो आप चेक कर सकते हैं, there's a link below in description, टॉपमेट पे जहाँ पे मैं सेशंस लेता हूँ. तो आपको किसी को भी कोई क्वेश्चंस है, you need to have 1-to-1 call with me and discuss everything, or you want some help with the letter of motivation or anything else, just go there. So आप मुझ पे वहाँ पे मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं. मैं सैटरडे वीकेंड्स पे फ्री रहता हूँ, तो आई कैन हैव अ सेशन ओवर देयर विथ यू गाइज. If you guys have any other questions, just a small query, just put down in the comment and I'll try to reply as soon as possible. And hope you guys learned something from this video. Thank you so much and have a wonderful day ahead. Bye-bye.